Welcome students, welcome to the e-learning session of economics. In today's session, we'll start with a new chapter in Indian economics. Okay, this is the second chapter. Okay, so we'll start with the second chapter in today's session. The chapter is 5-year plans, goals and achievements. Okay, the 5-year plans, goals and achievements. The topics that we will cover in today's session are economic planning, need for economic planning in India, directive and comprehensive planning, and the different types of economies. Okay, so these are the topics that we will cover in today's session. Let's begin with the first topic, that is what is economic planning. Okay, what do you understand by the term economic planning? Now, economic planning means planning on an overall basis. Okay, any central authority makes the plan for the whole country. Like in India, the central authority is the planning commission. Okay, after independence, planning commission has been making all the plans for Indian economy. Okay, so economic planning is what type of plans are made? All the targets, important targets are set. Okay, what the economy plans to achieve during a particular period of time, specified period of time, and during that period of time, how will it go about to achieve the plan? Okay, achieve the target. Okay, so these plans, these targets are fixed, goals are fixed for the economy as a whole. क्या क्या काम इकोनॉमी को करने हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या अचीव करना है इकोनॉमी को, है ना, किन किन एरियाज में फोकस करना है, ये होता है इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, और साथ में उन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्राम्स की जरूरत है, क्या पॉलिसीज की जरूरत है, व्हाट प्लान शुड बी मेड okay to achieve the target. This is known as overall economic planning. तो इकोनॉमिक प्लानिंग में टारगेट सेट होता है, ठीक है, और फिर प्रोग्राम एंड शेड्यूल्स बनते हैं, पॉलिसीज बनती है टू अचीव दैट टारगेट. ठीक है, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सबसे मेन चीज ये है कि टाइम ड्यूरेशन रहती है, उसमें वो अचीव करना है. ऐसा नहीं है कि फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड इट इज गिवन. ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है इकोनॉमी में, है ना, और उनको अचीव करने के लिए क्या प्लान्स एंड प्रोग्राम्स की जरूरत है, ये जो बनाते हैं इसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं. इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन इज द सेंट्रल अथॉरिटी मेक्स द प्लान फॉर इंडिया, what targets are to be fixed for a period and how it will India will go about achieving the targets, what programs it will follow, what policies will be adopted. Okay, all the plans, this is known as a detailed plan for India. Okay, so let's see what is written. It is an overall planning done by the central authority where it sets the targets and specifies the programs and policies to achieve the targets within a specified period. ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है. नाउ वी कम टू नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? व्हाई इट इज सो अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन इंडिया? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड क्यों है, इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, वी हैव स्टडीड दैट इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे समय के लिए इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था, ब्रिटिशर्स के रूल में था, है ना. सो दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी इन अ वेरी बैड मैनर एंड सो इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू अ स्टैग्नेंट बैकवर्ड इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिली उस समय इंडिया की हालत बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी की, स्टैग्नेंट इकोनॉमी की थी. बैकवर्ड मतलब जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है ना. स्टैग्नेंट, बैकवर्ड मीन्स जो कि पिछड़ी हुई है, हर चीज में पीछे है, इट इज मूविंग वेरी स्लोली, है ना. और स्टैग्नेंट मतलब जहाँ पे ग्रोथ का प्रोसेस बहुत स्लो है, ग्रोथ का प्रोसेस नेग्लिजिबल है. सो इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी एट द टाइम इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. Okay, so that is why it was very very urgent for Indian economy to have proper economic planning in so that it can achieve all the important targets which were required so that it can come back on the track, है ना, वापस से ग्रोथ के प्रोसेस में इंडिया आ सके. इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है. ठीक है, so let's see. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन वाज इंडिया वाज अ
बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, ओके, एट द टाइम ऑन द eve of independence was very very poor, very very bad condition. So India needed urgently, it needed proper comprehensive economic planning so that it can start working on the plans and achieve the targets and come back on the track of road to development, है ना। Next is low output and productivity। इंडिया में आउटपुट मीन्स द प्रोडक्शन, ओके, जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी कम था, और प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट वाज आल्सो वेरी लो, बिकॉज इंडिया में कोई आपने पढ़ा है कि कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पुअर था, एवरीवेयर इंडिया वाज लैकिंग, ओके, इन एवरी इकोनॉमिक सेक्टर इंडिया वाज लैकिंग। That is why productivity as well as production was very very low at the time, and low GDP growth, the growth was very very you can say meager growth, बहुत ही कम growth हो रहा था, GDP में एकदम growth हो नहीं रहा था। GDP means national income, it was not at all growing, ठीक है। there was you can say negligible growth in national income and low support। See, private sector was not very developed, capitalists were not very developed over at that time, at the time of independence, and market forces पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे, है ना। पूरी चीज आप अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देते या मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ देते, तो इंडिया का जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल फोकस ऑन द इंडिविजुअल गेन, है ना। तो वी कुड नॉट जस्ट डिपेंड ओनली ऑन द market forces for development, okay, we needed proper support and push from the government का support का और डायरेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत था उस समय, है ना। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर पे पूरी तरह से फोकस नहीं किया जा रहा था उस समय। गवर्नमेंट का रोल जो था इन द ग्रोथ प्रोसेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट वाज व्हाट वाज नीडेड बाय द कंट्री, इंडिया नीडेड गवर्नमेंट पुश एंड सपोर्ट, ठीक है, so that it can stand on its feet। That is why economic planning was given so much importance, economic planning was needed at that time। क्यों needed था? क्योंकि गवर्नमेंट जब तक आगे आके पार्टिसिपेट नहीं करेगी, स्टेट विल नॉट पार्टिसिपेट, है ना, मेक द proper plans for the growth and development of India, and it will provide all the resources, okay, for the and give the make proper plans, provide the resources, give the direction, okay, with the aim to achieve maximize the social welfare as well as economic growth, then only India was would have been able to achieve the or come on that road to growth। ये तो हम नहीं बोल सकते कि वो ग्रोथ होने लगेगा, लेकिन ये जरूर था कि वहां तक जाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत थी वो उस समय गवर्नमेंट कर रही थी, है ना। तो दैट इज वाई इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत उस समय में देखी गई थी, ओके। नेक्स्ट, directive and comprehensive planning। There are two types of planning which are made, one is directive planning, the other one is comprehensive planning। Directive means where you give the direction, जहाँ पे direction मिलता है ना, जहाँ पे order मिलता है, जहाँ पे आपको instructions मिलते हैं, so that is directive planning। So what is directive planning? See, directive planning is a planning where directions to market forces and private sectors are given by the state। State जो है, state यानी government, okay, government gives the direction to the market forces of demand and supply। demand and supply को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन के बाद वो अपने आप काम कर रहे हैं, ओके, दे आर गिवन सम डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू विच दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। मतलब ऐसा भी नहीं कि रिजिड कंट्रोल भी नहीं है। तो स्टेट इज नॉट वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ प्रोसेस, स्टेट इज जस्ट गिविंग द डायरेक्शन एंड इज looking for the role of market forces to help in the economic growth। तो market forces जो demand and supply के हैं वो खुद ही act कर रहे हैं, but they are getting the direction from the government, okay। maximization of individual gain। आप देख रहे हो कि यहाँ पे private sector का रोल बहुत ज्यादा है, okay। it is mainly seen, directive planning is mainly seen in which type of economy? It is seen in capitalist economy, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। वहीं पे तो हम लोग मार्केट फोर्सेस देखते हैं, तो मार्केट फोर्सेस की यहाँ पे रोल है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू
maximize the growth of an individual. Okay, maximize the growth of individual gain. Okay, maximize individual gain. But at the same time, it is directive planning. Directive means it is not freely, private sector is not working freely. Okay, it has some control of the state as well. So state is having some control, it is giving the directions just to safeguard the interests of the country as a whole, just to keep an eye that the social welfare objective is not ignored. ठीक है, तो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके बाद इंडिविजुअल गेन्स जितना भी अचीव कर सकते हैं करना है. ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्लानिंग का तरीका. डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो डायरेक्शंस देती है प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट फोर्सेस को. ठीक है, एंड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्शंस प्राइवेट सेक्टर एंड मार्केट फोर्सेस आर वर्किंग. ठीक है, दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर गेन्स, बट एट द सेम टाइम it is seen that the social welfare is not compromised, social welfare is not ignored. ठीक है, ये है हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग का तरीका. Now the next one is comprehensive plan. Comprehensive means detailed planning, and here we see that comprehensive planning is mainly seen in socialistic as well as mixed economy, economy. Okay, तो सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है. जैसे डायरेक्टिव प्लानिंग में हमने देखा था स्टेट इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द प्लानिंग, है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रही है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हम क्या देखते हैं कि स्टेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, स्टेट रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है. ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमीज में भी देखा जाता है. सोशलिस्ट में तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा स्टेट का ही पार्टिसिपेशन होता है ना. मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टेट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द, ओके, when government is participating along with the private sector, there is a mixture of private and public sector in this type of planning. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल गेन्स को देखा जाता है, साथ साथ सोशल वेलफेयर दोनों को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल गेन एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Thus in directive planning we see that the growth is more of the individual gain and less of the, but not ignoring the social welfare. Okay, but social welfare is not the focal point, but in comprehensive planning there is a balance between social welfare and the individual gain. Okay, so both private as well as public sectors are active over here, and state is directly participating in the management of resources. तो मेनली देखिए, जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग में द मेन फोकस इज अबाउट मैनेजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स. ठीक है, इकोनॉमी के जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना है बाय यूजिंग, रैशनली यूजिंग द रिसोर्सेज. जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको बहुत कायदे से, बहुत संभाल के, बहुत सही तरीके से प्लान वे में यूज करना, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज भी ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हैं, और साथ ही साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज भी करके अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, डायरेक्टिव एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. Since the first you can say introduction to economy, to the economy chapter, we have studied types of economy, है ना. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में शुरू से, फर्स्ट चैप्टर जब से आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वहां पे आपने इकोनॉमीज कितने तरीके की होती हैं, है ना, ये पढ़ा है. तो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके की इकोनॉमीज होती हैं. The first type of economy that we see around us, or we have studied about, is the capitalist economy. Capitalist economy कौन सी इकोनॉमी होती है? Capitalist economy is an economy where private sector is prevalent. Private sector is most active. Okay, private individuals, private capitalists are the ones who are handling the resources,
सारे रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ही हाथ में है. दे आर मैनेजिंग द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय मैक्सिमाइजिंग देयर ओन पर्सनल गेन और मैक्सिमाइजिंग देयर ग्रोथ. ठीक है, तो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका फोकल पॉइंट नहीं है, इंडिविजुअल ग्रोथ है. लेकिन इंडिविजुअल ग्रोथ से क्या होता है, जीडीपी का ग्रोथ होगा और कंट्री जो है ओवरऑल ग्रो करेगी, बट सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट देयर. ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट द यू कैन से फोकल पॉइंट ऑफ सच टाइप ऑफ इकोनॉमीज. इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी. ओके, तो मार्केट इकोनॉमी क्यों इसका नाम है, क्योंकि इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हम फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही सारी डिमांड और सप्लाई का डिसीजन लिया जा रहा है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट यू कैन से प्राइवेट ऑब्जेक्टिव्स, प्राइवेट गोल्स, है ना. किस चीज पे आपको रिसोर्सेज यूज करना है, कहाँ पे रिसोर्सेज को अलॉट करना है, जिससे आपके पर्सनल जो प्राइवेट सेक्टर का जो गेन है वो एनहांस हो सके. तो ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं. फ्री मीन्स विच इज वर्किंग ऑन इट्स ओन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम एनीवन. स्टेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट. ठीक है, जो कैपिटल है, कैपिटलिस्ट जो पीपल है जिनके पास ज्यादा फंड है, वो चला रहे इकोनॉमी को, पूरी रिसोर्सेज वो कंट्रोल कर रहे हैं. रिसोर्सेज को कहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग द रिसोर्सेज इन दोज एरियाज वेयर द पर्सनल गेन इज मैक्सिमम, where profit is maximum. Okay, so their main objective is maximization of profit. They are ignoring social welfare. Okay, but at the same time, when they are growing individually, it will lead to growth of the national income. But if you compare national income with social welfare, then there is no, you can say, direct relation between the growth in national income and the social welfare or वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है नेशनल इनकम का, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं हो रही, इक्विटेबल नहीं हो रही है. ओके, तो ग्रोथ इज देयर, नेशनल इनकम इज ग्रोइंग, जीडीपी इज ग्रोइंग, बट इट इज नॉट visible when you see the economy as a whole, because the growth of people in general is not happening. The growth of few people are happening. Okay, जो भी resources है, they are you can say centralized. They are not they are not being centralized. They are being cornered in some hands. Okay, जो भी resources हैं, they are being managed by few people. जो बाकी की जो जनता है उनको कुछ नहीं मिल रहा है ना. ना तो रिसोर्सेज उनको मिल रही हैं, ना उनकी कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, ना इकोनॉमिक जो नेशनल इनकम का ग्रोथ है उसका कोई पार्ट उनको कोई you can say they are not getting it, है ना. They are not participating in the national income. So national income के जनरेशन से लेके नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन तक जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनका रोल नहीं है. It is everything is being from the point of view of private individuals. Okay, capitalism. Second type of economy is the centralized economy. Socialist economy भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रली सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो प्लानिंग करती है. जैसे हम लोगों ने अभी बात की, प्लानिंग कमीशन है ना. तो अगर वो प्लान करे, सारे प्लान गवर्नमेंट बनाए, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट मैनेज करेगी. तो गवर्नमेंट अगर मैनेज करेगी तो पब्लिक सेक्टर विल बी प्रिवेलेंट एंड पब्लिक सेक्टर विल कंट्रोल द रिसोर्सेज फॉर सोशल वेलफेयर, है ना. उनकी जो ऑब्जेक्टिव होगी वो सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक का इन जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम या जीडीपी का ग्रोथ, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इन यू कैन से इंडिविजुअल गेन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसा कोई गोल नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे गोल किसका है, गोल इज टू अचीव, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज उसी हिसाब से यूज हो रही हैं. द क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू, है ना, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस ले रही, गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है कोई भी, और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं. ठीक है,
वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे आप मिक्सचर देखते हो अपने सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का भी, और कैपिटलिस्ट यानी फ्री या मार्केट इकोनॉमी का भी। तो both private sector as well as the public sector, both are prevalent over here, both are managing the resources together, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, they work in coordination, they work along with each other, okay, so that both the objectives of maximization of profit as well as maximization of social welfare both can be achieved, okay, together। एक चीज पे फोकस नहीं करना है, ना तो प्रॉफिट को इग्नोर करना है, नेशनल मतलब जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं करना है, और वेलफेयर को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ तभी कोई फायदा है जब वो वेलफेयर से हो। एक्सक्यूज मी, जब तक वो जीडीपी का ग्रोथ पब्लिक में के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जब तक पब्लिक की लाइफ स्टाइल, उनकी स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट इम्प्रूव, दे विल अनलेस पीपल आर गेटिंग जॉब, unless poverty is being removed, है ना, from the country, unless we are achieving the basic objectives of growth and development of the overall population, तब तक हम बोल नहीं सकते कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नेशनल इनकम की ग्रोथ की जरूरत है, उतना ही ज़्यादा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो भी फेयर हो, इक्विटेबल हो, उसकी भी जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि पॉवर्टी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, है ना, जो भी डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट है ना, जिसको बोलते हैं इलिटरेसी है, ये सब चीजें, अनएजुकेटेड पीपल, ये सब की जो पॉपुलेशन है ये हमेशा बढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो देयर फेयर शेयर इन दी नेशनल इनकम दे आर नॉट गेटिंग, they are being ignored, they are not participating in the growth and development process at all। ना तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ना उनको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जब भी होती है तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजों का बैलेंस रखते हैं। सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है कि रिसोर्सेज वहां भी लगाए जाएं जहां से सोशल वेलफेयर हो, जहां लोगों को प्रॉपर जिसको बोलते हैं जो बेसिक फैसिलिटीज है लाइफ की, है ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो आराम से मिले, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर आए, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, हाउसिंग फैसिलिटी मिले, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये सब मिले, फूड तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें पे ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ रिसोर्सेज को ऐसी जगह भी इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां से जल्दी प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके, है ना, so that the national income may be national income growth, है ना। तो नेशनल इनकम भी बढ़े, सोशल वेलफेयर भी बढ़े, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो जो बैकवर्ड कंडीशन है या स्टैग्नेंट पोजीशन पे है उससे बाहर आ सके, है ना, so that it comes on the track of being a डेवलपिंग इकोनॉमी। हम ये तो नहीं बोल पाएंगे कि एक दिन में रातों रात डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन हाँ, अगर हम प्लान तरीके से काम करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके चलेंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर पे फोकस करेंगे, हर जगह सही तरीके से बैलेंस लेके चलेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग स्टेट में आ सकेगी। अभी तो अंडर डेवलप्ड स्टेट में थी, है ना, वहां से डेवलपिंग के स्टेज में आ सकेगी और फिर धीरे धीरे डेवलप भी हो जाएगी। तो दिस इज वाई इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फोकस्ड अपॉन, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है ना, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये अर्जेंसी है कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत शार्पली की जाए, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान देके की जाए। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में जाना कि क्या होते हैं दोनों और कहाँ कहाँ पे किस तरह की इकोनॉमीज में ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जो कि आपने पहले भी क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, वो हम लोगों ने आज फिर से एक बार रिवाइज किया, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, उनके क्या फीचर्स हैं, है ना, और किस तरह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड the first session of this chapter. Go through the notes, go through the book, okay, go through the chapters and read it like a story. You will understand
Okay, and still if you have any doubt, if you face any difficulty, feel free to contact me. Okay, thank you so much, students. We'll meet in another session on this same chapter to complete the rest of the portion. Okay, thank you so much.